partnership with Accenture in 2015. Till that, more than 40,000 women and girls have been trained across 30 plus locations in India through READ centers. Nearly 60% of them have self-reported to have received some economic gains in their lives post the skills training. To take you through this journey, we have put together a film. I request Praveen to please play the film. In a world where empowerment and enterprise go hand in hand, a new idea emerges to celebrate the enterprising spirit of women across diverse communities. Introducing WE, Women, Empowerment and Enterprise, a brand that brings together the multifaceted talents of enterprising community women in creating an array of excellent and sustainable products the time-tested way. WE is a Women Micro Enterprise initiative of READ India. Let's begin with our Khadi weavers from Geechgarh, Rajasthan, producing high-quality organic and non-organic cloth. It has already gained currency amongst buyers. From Lucknow, our beeswax diyas are specially handcrafted by highly trained women from marginalized communities. Made from natural wax produced by honeybees, the diyas are non-toxic, burn for a longer time, soot-free and drips less. Most importantly, they are 100% natural. Natural food ingredients like herbs, spices and highly nutritive millets are produced by a tribal group from Andhra Pradesh. These organic millets are used in various culinary preparations including porridge, flatbreads, rice, etc. The tribal group from Barang brings to you the finest spices like turmeric, garam masala, chili powder along with amla candies, 100% pure and natural. Our women from Bangalore bring to you traditional herbal and handmade products like aloe vera, lemon soaps, cocoa, beetroot and rose lip balm. Now, step into the world of fashion with designer apparels from Dwarka and Lucknow, where craftsmanship meets elegance in every stitch. Furthermore, admire the artistry of zari embroidery from Rampur and chicken curry from Lucknow. Every thread weaves tales of tradition and craftsmanship. Explore the rich heritage of Phulkari, hand embroidery from Punjab. Vibrant, colorful and fashionably designed motifs and geometrical shapes. Lay your hands on Kantha, a century-old tradition of stitching patchwork by the rural women of Bengal. Kantha refers to both the style of running stitch as well as the finished cloth. Finally, simply be amazed by the exquisitely crafted daris, tribal handicrafts and Muni grass products made by women folk of Rampur, Lakhimpur Kheri and Chaisa. Here, each product tells a story of empowerment, tradition and craftsmanship. WE not only empowers rural women but also celebrates their talent, resilience and cultural ethos, where traditional skills help create a sustainable future.
possible because of a very strong partner, Accenture. We have two representatives from Accenture who've joined us today. I'd like to please welcome Mr. Inder and Ms. Jessica. Please join us here, and I'd like to request Geeta ma'am to please welcome them with a shawl. Mr. Inder and Ms. Jessica Nagpal. Ma'am, please welcome them with a shawl. This shawl is, of course, handmade as we shared in the last session. This was made by women from Gichgar, first initiative that we started under Skills to Succeed program. Please join us on the dais. Please come. To talk more about our journey on Skills to Succeed, we are joined by our partners and our experts. First, I'd like to call Mr. Amit Rai, who's a social audit expert with Solvera Consulting. He's done a thorough research on the kind of work that we are doing and how we are bringing it to the mainstream. So, Mr. Amit, please join us on the dais. We have Ms. Sonal Bey, who's an expert on Khadi, and she's guided us and brought us to where we are at this point of time, where you see beautiful products of Khadi that is exhibited across the country and hopefully across the world. And she's proudly wearing one of the Reed hand-woven sari. This is a sari that we our community had presented in the last I think round. We have two people, Ms. Seema Singh and Ms. Aarti Rana, who's expert on handicrafts. Can we have you both on the dais, please? Seema ji is working with the community, and we have Aarti Rana, who's a national awardee. She's been awarded for the beautiful Moonchcraft work that is being done. Can we have her profile on screen, please? We can see Aarti ji's profile over here. We are also joined by Shrimati and Shri Devji Bhai. Please, आप आइए सर हमारे साथ आइस पे एक चेयर. Please sir, please welcome. ये सर और मैम हमारे साथ बुध से ट्रैवल करके यहाँ तक हमारी जर्नी में आए हैं. सर, we welcome you again, a national awardee. Both of them, you can see the beautiful weave that they are wearing and beautiful craft that is representing the rich culture of our country. With this, I'd like to call upon Mr. Amit Rai to share about the outcomes of skilling program. Yeah, thank you, Smita. मतलब मेरे इंट्रोडक्शन में ये ऑडिटर वर्ड जुड़ते ही सडनली ना बहुत सीरियसनेस आ जाती है, जैसे बहुत ही कुछ सीरियस प्रोविजन वाली बातें होने वाली हैं. शायद हो भी, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं रीड की नज़र से, रीड इंडिया ने जो काम किया है, जो SDGs हैं और किस तरीके से हम उनसे जुड़े हुए हैं और हमारे क्या पर्सपेक्टिव्स अब तक बन पाए हैं, मैं उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा एक इंटरैक्टिव तरीके से. सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी, एंड पीछे जितने लोग बैठे हैं उनको नमस्ते सब लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे काम भी किया है तो हम लोगों की पहले से जानकारी है एक दूसरे के साथ. सो बिफोर आई मूव फर्दर, I really thank Read India and its leadership and all the pillars who have been here on the dais before us when we were here to actually provide us with a platform to shed light on the transformative power of livelihood skills. So ये मतलब मैं इतने सीनियर वेटरन्स एक्सपर्ट सबको सुन रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हम डिजर्व भी करते हैं यहाँ पे खड़े होकर ये बातें बोलना, पर कहीं ना कहीं हम भी उसी जर्नी में जुड़े हैं और कुछ चीज़ें सीख के आगे बढ़ रहे हैं. यही हमारा मकसद है और इसी को हम लेकर, इसी पैशन को दिल में लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं. It's been now almost 2 months that we have been engaged with Read India for a special engagement of conducting a impact assessment and of all the social interventions that Read introduces through its core programs. Honestly, I must admit that this is an opportunity for us for deep diving into the bodywork of Read India that has been construed over a period of time and the way that it touches the lives of people across the communities. जब ये काम शुरू करते हैं तब बड़ा मेथोडिकल होता है, हर चीज़ पता होती है कि इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए, बट जब आप उस काम में
लगने जाते हैं और जब जवाब खोजने की तह तक जाते हैं तो समझ में आता है कि काम हो कैसे रहा है, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं और कौन कौन किस किस की लाइफ्स को कैसे कैसे टच कर रहा है, और उसके पीछे एक मेथड है, उसके पीछे एक प्रोसेस है, उसके पीछे एक एंड गोल है जो पहले से डिसाइड किया गया है, और उसको ऑर्केस्ट्रेट करके मतलब एक सिरे में पिरो के और फिर उसको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करना, ये एक अपॉर्चुनिटी है हम जैसे लोगों के लिए जिनको कि ऑडिटर है, हम लोग सोशल ऑडिटर कहा जाता है। तो इसलिए बहुत मजा आता है जब उसके अंदर एक थोड़ा सा ह्यूमैनिटी, रोमांस, पैशन, हर चीज जुड़ जाती है। तो इसलिए ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू गेट दिस, टू गेट द वर्क दैट वी आर डूइंग राइट नाउ। So I mean, if we look at it, when we actually imagine a world where everyone has the opportunity to go ahead, to thrive, it appears to be a very extremely powerful thought. ऐसा लगता है कि अरे यही तो होना चाहिए, और कुछ होना ही क्यों चाहिए, एक फ्री वर्ल्ड हो, हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, एक्सेस हो, इक्वल एक्सेस हो, और हर कोई उससे प्रॉस्पर कर रहा हो। बट इस काम को करने के लिए, जैसे मैंने पहले बोला, मेथड, प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना, तभी ये चीजें संभव हो पाती हैं। So I mean, of course, before we move further and before we move ahead on the topic that is there right now, which is probably to reflect upon the outcomes of the livelihood skills as a core intervention, as a core program that READ takes it through across its pivotal model of community libraries and resource centers. I would probably digress a little bit and I would move into the changing landscape of social sector. Very briefly, I would want to touch upon it because that is what is going to set the tone for what we are going to talk here onwards, and that is also the underlying essence of the impact assessment that we are doing. Even before that, so the kind of work that we are doing, it's been almost 2 months, but probably we are midway in that work right now. So there are a lot of learnings which are subjective in nature, which are qualitative in nature, which is quantification of this is still in the process. So I'll try capturing all this in this conversation right now, or it's more like a monologue in the moment, but yeah, like a monologue, what we are going to do. So the little bit of digression and reflection on how the landscape is changing right now. So I would like to throw some light on the changing and evolving landscape of social sector and the emergence of regulated social stock exchange and related benefits and regulatory aspects. ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आज से 2 डिकेड पहले ये अलग अलग जोग्राफीज में अलग अलग जगह पे ये ट्राई किया गया है, एंड चाहे ब्राज़ील हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूएस हो, चाहे डेवलप्ड इकोनॉमीज हो, चाहे डेवलपिंग इकोनॉमीज हो, हर जगह पे इसको ट्राई किया गया। बट एक जो बेसिक प्रॉब्लम इनग्रेन थी कंसेप्चुलाइजेशन में, दैट वाज बिकॉज इट वाज ऑलवेज ट्रीटेड लाइक अ मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म वेयर देयर इज there is a implementing agency and there is a donor and they are just, it's like a yellow pages directory. आप ये काम करते हैं, हम इस काम में काम करवाना चाहते हैं, अच्छा ठीक है आपका ये एड्रेस है, हम फिर, and then they used to move out of the ambit of the social stock exchange. The way that it has been conceptualized in India, it is very different. So I mean, I would just try putting it in a perspective that in Indian context, the social stock exchange is a set of processes. It is not only a place. मतलब वो कोई सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म नहीं है. It is also encapsulated the processes for people to come on board, for people of the entire social sector, social landscape, and play a participatory role in it. And this means that social stock exchange is not only a place where funding possibilities are listed, but also a set of procedures that act as a filter, selecting in only those entities that are creating measurable, positive social impact. And these are very key words: measurable, social, positive social impact. So these are the parameters. This is the underlying principle of doing this. So currently, if we look at it, there is with the help of Accenture, the Skill to Succeed program is running, and it did through the thoughts. Of course, it would have started from a thought, and it would have translated into a project, and then the resources would have been aligned to achieve what has been achieved and what is being achieved and what will be achieved in future as well.
So, of course, all this falls under the ambit of the corporate social responsibility, impact investment, and enabling all these diverse channels on a common platform to enhance the possibility of driving a larger social capital towards organizations like Read India is probably a correct definition or a more amenable definition, more palatable definition for all of us beyond the provision of, beyond the scope and thought of an auditor of a social stock exchange. So, this is where social stock exchange comes in, and the major objective is to maintain, to bring transparency and accountability between the funding channels and the utilization prospects. So this is primarily what the social stock exchange does. In our own opinion, as a group of, as a professional advisory firm and as the group of people that we are, and when we move in a certain circuit, it is our very strong opinion that it's only a matter of time when all this will start to come under the ambit of regulatory statutes which will give a consistency to the reporting formats and performance indicators, so that there is one common language which is there for the entire social landscape in order to achieve the transparency is what, as I mentioned. So the whole idea of introducing social stock exchange concept at this juncture of our conversation was more, to highlight the current impact assessment exercise that we are doing for the body of work. And it is being conducted in a manner so that it aligns with the statutes of social stock exchange and social audit by taking into account social accounting standards. So there have been social accounting standards that have been laid down, which is, just to draw a simile, जैसे एक corporate company होती है, उनके लिए CA होते हैं और उनके लिए उनके provisions होते हैं under the Companies Act, etc. put together. Similarly, social audit के भी अपने कुछ standards हैं. So this impact assessment that we are trying to do is aligning the work of Read India, encompassing the SDGs that it is addressing, and also applying the social accounting standard on the top of it, so that it becomes a ready document, and whenever that the organization plans or decides to move ahead with the social stock exchange, the organization is ready not only from the perspective of document or information, but also in terms of processes to collate and create a dashboard of this information. So this is why I introduced and I digressed a little bit from the main topic that we are discussing right now. So circling back to the core topic that we are discussing, which is livelihood skills, the social intervention that Read India aims to equip individuals with the tools that they need to succeed in their lives, primarily in the modern economy landscape where all of us are living right now, through multiple kind of interventions, multiple kind of sub-interventions under the livelihood skills training. But let's just try understanding what is the social challenge that the organization, or irrespective of Read, anybody in this sector or in this, whosoever is trying to address these SDGs would only try to focus on this particular social challenge, which is which addresses the women, the economic empowerment, the gender equality, and as all, there are people who are on ground, they've worked so extensively on this. मेरी बात थोड़ी सी ज़्यादा academic लगेगी सर, but still मैं सिर्फ अपनी thought को present कर रहा हूँ आप ही के शब्दों में जो मैं अभी सुन रहा था. So so there are many women who face barriers to accessing education, formal employment opportunities. Through this livelihood skill program, what we try doing, or what Read tries doing, is training them into various vocational skills such as sewing, handicrafts, agriculture, entrepreneurship, so that they are able to generate extra income or income. Let's say income and extra income, extra for their family, but income from their own perspective, and support their families and gain greater autonomy. That is the impact, that is the primary outcome that is what Read India or any organization, any implementing agency would want to address through this. As we all know that women in the marginalized communities don't have access to resources, and there is always a lack of access to education. These are all core principles which have been discussed multiple times on the dais, and I'm sure it will continue to run because this is what the organization stands for. So I'll try skipping it. But there's two very important things that we have identified while we are in the midway of doing the impact assessment, that
Usually it is very difficult to do an assessment in a very structured manner in line with the statutes given by SEBI or the ISAI, which is the Institute of Social Auditors of India. But the way that when we looked at the documents and the work that REIT is conducting, it is very heartening, and it has made our lives little easier, our work little easier, because it is already they work in a very task-centered method, that emphasizes on problem solving and evidence-based practical approach. So there is a sync between what is being claimed and what is being done. So it's always validated. And also, what we have identified, and once the report gets published, of course it would be in the public domain, but we also identified that the point of initiation is from identifying the key problem, the root cause problem, then establishing goals and achieving the same by keeping CLRC model as a pivotal model there. So while we have been talking about libraries and what benefits it can be done, which is at the heart of every social intervention that REIT carries through, but yes, what it does is that it provides a platform from where multiple kind of such initiatives or interventions can be radiated in the on the social landscape for the community's welfare. I mean, if we bracket these initiatives and align them with the SDGs and the national priorities of Government of India, of course, we see that almost every initiative is covering all the SDGs, barring few exceptions, of course. But directly livelihood and staying with the topic right now, we see that the 5, 8 and 10 are really getting addressed to the core of it. So, if we would have left these SDGs unaddressed through the social interventions which are being carried by REIT right now, what would it mean? It would mean that the gender inequality that undermines the women's and girls' rights, limits their economic opportunities, and hampers the social and economic development of communities. ये state ऐसी ही रहने वाली है. So of course, there is an SDG which is getting addressed to the core interventions, and this is the consequence if we leave it unaddressed. If we look at the SDG 8, if that is not getting addressed, which emphasizes on decent work and economic growth opportunities, so then what it would do, that it would always create that lacuna of good work opportunities that will continue to lead to poverty and income inequality, social exclusion, and the disparities in the society. So, moving forward, I would say that with all this background, there is already a work that we have seen through the movie, and I think probably last 1 minute I will take more, because most of the social, whatever that I had to speak has been depicted very well through the movie that was already there. So so what are the outcomes of these interventions? That is where we reach, and if we have to broadly speak, then I would say that in general, of course, we have touched upon most of the points, and since you are working on ground, so you understand it better, but still, if we have to look at it broadly speaking, firstly, the livelihood skills social intervention that REIT India or any other implementing agency would carry through for a livelihood skill program would lead to increased employability by providing individuals with relevant training and marketable skills. They become attractive to employers, thus expanding their job opportunities and income potential. और ये हमने ग्राउंड लेवल पे फील किया है. हमने ये जब काम किया है तो ये फील किया है कि कैसे कॉर्पोरेट लिंकेजेस करके, प्रोडक्ट के लिए लिंकेजेस करके, कम्युनिटी को जोड़ के जब काम होता है तो ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं और सब लोग पैशनेटली आके कम्युनिटी कोहेजन के अंदर आके काम करना शुरू करते हैं. वो हमने बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स देखे, हमने बरान में देखा, स्पाइसेस के साथ देखा, गीचगढ़ में आज तक हम कोशिश कर ही रहे हैं, हमने एपीरी मैनेजमेंट में, बी कीपिंग में डॉक्टर नितिन के साथ देखा. सो ये एक एफर्ट है जिससे कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं और कम्युनिटी कोहेजन आता है, कम्युनिटी इकट्ठे आती है, उससे कम्युनिटी के अंदर एक रेजिलियंस बनती है. सो लाइवलीहुड स्किल का ट्रेनिंग प्रोग्राम, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, इनकम बढ़ी, कम्युनिटी इकट्ठे आई, कम्युनिटी का कोहेजन हुआ, उससे रेजिलियंस आया कम्युनिटी के अंदर. तो आप हम अलग अलग करके इन बातों को बात कर लें, इसको एलैबोरेट कर दें, बट दिस इज हाउ इट रिलेज एंड इट एक्चुअली पर्कुलेट्स in the society, in the community. I mean, beyond economic outcomes, if we look at it, these interventions are also helping in boosting the, let's say, the self-esteem and the confidence
ऑफ द कम्युनिटी. ऑफ कोर्स जब कोई पैसे कमाता है, उसकी अपनी एक ऑटोनॉमी मिलती है उसके पास, तो उनका सेल्फ एस्टीम, उनका कॉन्फिडेंस, उनका से, उनका स्टेचर विद इन द फैमिली, विद इन द सोसाइटी, विद इन द कम्युनिटी, एंड देन वी कैन गो ऑन जूमिंग आउट, वो बनता है, उनको वो जगह मिलती है. सो उनसे और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाने की. एंड आई मीन अगर थोड़ा सा एलैबोरेट करना हो तो ऑफ कोर्स व्हेन वी लुक एट व्हाट वी डू इन टर्म्स ऑफ when there is a livelihood skill program that is running and these all outcomes are being experienced by the community, so there is a capacity building in the community which is happening. We think of capacity building in a very different way. When we think of capacity building, we think that capacity building of the trainers and the people on the ground who have to alleviate their own capacities. But this is a capacity building of a community to address their own specific needs and challenges which only they would understand better. So जब कम्युनिटी कोहेजन होता है तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी होती है एज अ कैपेसिटी. Of course, we have reflected upon the improved social status, enhanced self-confidence, self-esteem, reduced vulnerability to exploitation. I heard ma'am talking about कि अगर एक्सेस ही नहीं होगा इंफॉर्मेशन का तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा. सर आप भी यही बात बोल रहे थे अलग अलग शब्दों में. सो ऑफ कोर्स जब एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मिलेगा थ्रू लाइब्रेरी मॉडल, लाइवलीहुड स्किल ऑन टॉप ऑफ इट, तो आपकी vulnerability in the society to get exploited also gets reduced. This is then it leads to of course better health outcomes as well, because you are leading a more informed, more healthy and more prosperous life. So of course this is while we are talking about, we are looking at one individual beneficiary, but group of beneficiaries coming together is forming a community. So इसका impact community में relay होता है. और ये सब हम अपनी इम्पैक्ट असेसमेंट जो इस समय में कर रहे हैं उसमें ये सारे एस्पेक्ट्स अलग अलग जगह पे अलग अलग इंटरवेंशन पे दिख रहे हैं. सो व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू राइट नाउ इज नॉट समथिंग विच वाज द एंड गोल टू अचीव, बट वी आर रियलाइजिंग व्हाइल वी आर डूइंग द इम्पैक्ट असेसमेंट that it would have been an end goal for REIT, but in our journey as an auditor, when we are examining every social intervention along with the data which is existing there and our interaction at the community level, these are things which are actually happening. So these words are emerging out of our assessment, not out of our end goal or targeted goal that was already there, and now we see that there is so much of sync between what was targeted and what is being achieved. So in essence, if we look at it, we have talked about the resilience and sustainability as well, but in essence if we look at livelihood skills intervention program skills to succeed, what we do is not just about imparting knowledge. It's not only about skill दे दिया और वहाँ पे खत्म हो गया. It's about unlocking the human capacity and human potential by supporting them, by sustaining that initiative even further from the training to ensure that they are able to develop their micro enterprise, or they are able to actually their employability skills are enhanced and they are getting better employment opportunities. So in conclusion, I would say that although this is a wonderful topic to talk upon, I would wish that we will next time onwards we'll have more time to elaborate, so that when we talk there's an interactive session and we also get to learn from such a learned community. But I would just conclude that thank you so much REIT India for actually championing these livelihood skill intervention program. Thank you so much Accenture for actually enabling this through your thoughts and resources, and as a very very extremely powerful tool for empowerment and sustainable development. I think आप सब लोग कर रहे हैं, कर चुके हैं, कुछ लोग मेंटोर हैं, गाइड्स हैं, ऑन ग्राउंड लोग हैं, और हम सब लोग अगर मिल के करेंगे तो आई एम वेरी श्योर दैट वी कैन बिल्ड अ वर्ल्ड वेयर एवरी इंडिविजुअल विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू live their first unleash and then live their full potential and contribute meaningfully to the society. So this is where I will just park my thoughts or put it to an end. But thank you so much. Thank you very much for your patient listening. Thank you, Mr. Rai. Wearing the social auditor's hat, you've really, I think what we are doing on ground, probably you are translating into the social and the, I would say, corporate languages, corporatizing it. So I think that's one report that we all are eagerly waiting for, because that is going to talk about, celebrating these 17 years and how each one of us has contributed to add to that significant mission that we are covering.
With that, I would like to now invite Sonal Bed, who's been part of this journey from the very beginning when we started, when he had just started this journey, and this started with Geechgar, where she said that we can do something with weaving and spinning, which was difficult to dream at that time, but she had that dream, and that dream has led us to this day where we are celebrating this event. So Sonal, please share your experiences. वेलकम सबको, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने इतना बड़ा मुहिम उठा रखा है पढ़ाई का, स्किलिंग का, ग्रीन इकोनॉमी का, इतने सारे लेवल्स पे इतना सारा काम एकदम रिमोटेस्ट ऑफ एरियाज़ में जाके रीड कर रही हैं और आप सब मिलके उनके साथ में कर रहे हैं. आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट रीड इंडिया टीम फॉर टेकिंग अप दिस ह्यूमंगस टास्क of going deepest and deepest into the villages and implementing all of this. Smita had very rightly mentioned that it was a dream, और ये ड्रीम मेरा कहाँ से आया और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है. हम ग्रीन इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं, ग्रीन स्किलिंग की जो बात कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको शेयर करना चाहूँगी इस चीज़ के लिए, जो आपको पता चलेगा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं हम. If you can just hold your breath for 10 seconds, and we can start the time now, and I'll count back. Please hold your breath. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. सांस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे लाइफ में. बिना सांस के कोई जीवन नहीं है. तो मेरा काम टेक्सटाइल्स के अंदर काम हुआ 20 साल पहले, जब मैंने देखा कि बहुत सारे केमिकल्स पानी में जा रहे थे, और तब मैंने थोड़ा रिसर्च स्टार्ट किया तो पता चला कि सिर्फ 100 साल पहले ये सारे केमिकल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं. इसके पहले इंडिया में हजारों साल से सिर्फ और सिर्फ नेचुरल तरीके से काम होता था. सिर्फ हाथ से काम बनता था, सिर्फ हाथ से ही कपड़ा बनता था, सिर्फ नेचुरल कलर जैसे हल्दी है, अनार के छिलके हैं जिसके अंदर दवाई का रूप है, उसी से ही होता था. बच्चों को हल्दी के कपड़े से लपेटा जाता था ताकि उनको वो एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ मिले. हजारों साल तक हमारे पूर्वजों के पास में इतनी ज़्यादा नॉलेज थी इस चीज़ की, जो हमारे सामने आती ही नहीं है, वो हमें पता ही नहीं चलती है वो चीज़. और इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किसको होता है? हमारी धरती को होता है. जो बनाता है उसको होता है, और जो पहनता है उसको भी होता है. हर एक जन को इसकी इफ़ेक्ट होती है. एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो एक टी शर्ट पे 2000 लीटर पीने का पानी बर्बाद होता है. 2000 liters of water gets destroyed in just one t-shirt from land. जब से वो उगाया जाता है और जब तक कि वो हमारे हाथ में आता है, तब तक 2000 लीटर पीने का पानी, अगर आप एक मैथ करें तो हर दिन 10 लीटर से ज़्यादा पीने का पानी हमें नहीं चाहिए होता है, खाना पीना हर तरीके से. अगर उसका आप डिवीजन करें तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा कपड़ा इस चीज़ के अंदर बर्बाद किया जाता है. तो यही सपना था जो मैं गीता से मिली थी दसरा में. हमने एक सोशल लीडरशिप प्रोग्राम किया था और उसमें मेरी और गीता की मुलाकात हुई थी. हमने 1 साल का हार्वर्ड का प्रोग्राम किया था उसके अंदर, और उसमें मैंने शेयर किया था ये विजन गीता के साथ में, क्योंकि मेरा काम ही इसी अंदर था. और मैं चाहती थी इस चीज़ को रिवाइज़ करना. आई वॉज ऑल्सो रीडिंग गांधी जी की, उनकी बायोग्राफी पे मैं पढ़ रही थी, और गांधी जी ने इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया कि अगर हर गांव में ये काम हो रहा होगा तो हमारा कोई इंसान भूखा नहीं जाएगा और कोई भी इंसान बीमार नहीं पड़ेगा. अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारी लैंड जिस तरह से रो रही है, वही उसी तरह से हमारा शरीर भी रो रहा है. अगर आप नोटिस करेंगे तो हम हर एक जन को जानता है जिसको कैंसर हुआ है आज की डेट में. ये 20 साल पहले नहीं था, ये 100 साल पहले भी नहीं था, ये आज है. हर एक जन को एलर्जीज़ की प्रॉब्लम होती है. हर एक जन जानता है कि किसी को एलर्जीज़ की प्रॉब्लम है, हार्मोनल डिस्ट्रप्शन है, रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ हैं. रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ 30-40 साल पहले सुनने में ही नहीं आती थी कि रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ हैं, कि बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है.
बट अब ये हो रहा है। जब हमारी धरती नहीं उपज दे पा रही है, हमारा शरीर भी नहीं उपज कर पा रहा है। तो ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग गांधी जी को बहुत डीप में थी और उन्होंने ये चीज़ कहा। तब से मुझे ये सपना था कि हम किस तरह से गांव-गांव में हैंड स्पिनिंग को, पेटी चरखा को या ऑर्गेनिक कॉटन को किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं, ताकि गांव-गांव में इस चीज़ को उगाया भी जाए, ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाए। तब मैंने गीता जी से ये चीज़ शेयर करी थी और हमारी डिस्कशन हुई थी इस चीज़ के बारे में। एंड शी सेड कि अलाइन किया उन्होंने भी मेरे साथ ये विजन देखा। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू गीता, टू बी एबल टू सी दैट विजन एंड टू हैव दैट विजन फॉर योर कम्युनिटीज़। और इस चीज़ में उन्होंने जब मुझे इनवाइट किया, तब हमने इनवाइट किए और भी मुझे हर चीज़ का नॉलेज नहीं था, तो हमने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जिन्होंने हमें हैंड स्पिनिंग सिखाई। माधव जी को हमने कैसे न कैसे ढूंढ के निकाला जो हमें सिखा सकें हैंड स्पिनिंग, क्योंकि ये भूल चुके थे लोग, हैंड स्पिनिंग कैसे करना है, वीविंग कैसे करना है, ये चीज़ लोग भूल चुके हैं। तब इसको वापस किस तरह से लेके आएँ, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कोशिश की कि किस तरह से हम स्टार्ट करें। तो हमने कई गांव में, अलग अलग गांव में हमने जाके असेसमेंट किया कि कहाँ पे ये चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और हमने इसको हैंड स्पिनिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया, फिर वीविंग को प्रोसेस को स्टार्ट किया। और आज मुझे कहते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये इतने एडवांस लेवल पे चला गया है कि ये इंटरनेशनल सेल्स में भी जा रहा है। अब हमने इसको कई कस्टमर्स को भी दिखाया है एंड दे आर वेरी हैप्पी टू सी द क्वालिटी, किस तरह की क्वालिटी बन के आई है। और ये किस तरह से इसकी एक आप देख रहे हैं, इसका भी गिफ्ट हो रहे हैं। आप इतनी ब्यूटीफुल तरीके से ये चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाए हैं। और जहाँ पे जैसे स्मिता ने मेंशन किया कि हैंड स्पिनिंग का और किसी भी चीज़ का कोई नॉलेज ही नहीं था, और कहाँ से कहाँ तक ये सब आ गए। और सबसे ज़्यादा असर इस चीज़ को कम्युनिटी के लिए होता है। मैंने सोचा कि हम जाएंगे, हम कुछ चीज़ समझाएंगे, सिखाएंगे, पर हम कितना ज़्यादा कुछ सीख के आए हैं। जब हैंड स्पिनिंग प्रोसेस स्टार्ट किया गीता, हम सोच भी नहीं सकते थे कि 70 साल की औरतें इसके साथ में जुड़ेंगी, 60 साल की औरतें, 70 साल की औरतें इसके साथ जुड़ेंगी, जो सोच भी नहीं सकती हैं कि वो कुछ कमाई कर सकती हैं। अगर हम सोचें कि सबसे ज़्यादा हायरार्की में सबसे लोएस्ट कौन होता है, वो एक बूढ़ी औरत घर में होती है, जिनके ना दवाई का, ना कपड़े का, ना किसी भी चीज़ का लास्ट अगर इनकम पहुँचेगी तो उनके पास पहुँचेगी। और जब वो एक औरत कमाती है और जब हम बैठे हैं और वो एक कहानी बताती है अपनी कि मैं अपने पोते के लिए गिफ्ट खरीद के लेके आई और उसके आंखों में आंसू आते हैं और मुस्कुराहट आती है, तब लगता है कि हाँ, हमने कुछ अचीवमेंट्स हुई हैं इस चीज़ के अंदर। तो ये ट्रूली ग्रीन इकोनॉमी की हम बात करें तो ग्रीन इकोनॉमी अब बोलना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हर चीज़ में केमिकल घुसा दिया है। हमारे इंडिया में कभी भी ये चीज़ नहीं थी, हम हर चीज़ को एकदम नेचुरल तरीके से बनाते थे। तो ये जो चीज़ें हैं, अब हमें ग्रीन इकोनॉमी बोलनी पड़ रही है इस चीज़ को, और दुनिया भी अब रिकग्नाइज कर रही है। कोविड ने हमें दिखाया कि हेल्थ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सांसें रुक जाती हैं और सांसें जब रुक रुक के आती हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमारे जीवन की कितनी महत्व है। जब हम केमिकल्स यूज़ करते हैं तो धरती की सांस नहीं होती है, हम खुद भी सफोकेट होते हैं। अगर आप एक केमिकल को अपने नाक के पास रखेंगे, केमिकल में अगर आप पेंट का एक कमरे में आप खड़े नहीं हो सकते 1 घंटे के लिए भी, तो आप इमेजिन करिए अपने शरीर के ऊपर अगर पूरा केमिकल पहन रखा है, या जो भी जन काम कर रहा है इस चीज़ के ऊपर, उसने अगर वो केमिकल के साथ ही काम कर रहा है, तो उसकी हालत कैसी होगी, क्या दिशा होगी। ऑब्वियसली हम इतने बीमार पड़ेंगे। तो ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई है। अब तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा जोर दे रही है इस चीज़ के ऊपर कि ग्रीन की तरफ हम जाए। कई कंपनीज तो एकदम कंपलसरी हो गया है कि आपको कई चीज़ें, केमिकल्स आप यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है। तो ये फ्यूचर, ये हमारा हमेशा से इंडिया का पास्ट रहा है, और इंडिया हम दिखा सकते हैं दुनिया को कि किस तरह से इस चीज़ को वापस मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। आज रीड का तो इतना ज़्यादा रीच है, और एकदम रिमोटेस्ट ऑफ एरियाज में जाके आप ये चीज़ कर रहे हो, तो ये, और आपका विजन इतना अच्छा है कि आप लोग एक लाइवलीहुड का भी इतना बड़ा मुहिम उठा के रखा है इसके अंदर। तो इसमें वो सोसाइटी को ना एम्पावर किया है आपने, आप एक एनवायरमेंटल एजेंडा भी आपने एक ले रखा है इस चीज़ के अंदर। सो इट्स अ वंडरफुल इम्पैक्ट दैट यू हैव क्रिएटेड। एक सोशल इम्पैक्ट है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट है, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोर्स तो है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज अ पार्ट ऑफ इट, उसके बगैर कुछ भी नहीं आगे बढ़ता
लगता है क्योंकि सब काम रुक जाता है, बट द ह्यूजेस्ट इम्पैक्ट दैट कम्स इज द सोसाइटी इम्पैक्ट, लाइक आई सेड, लाइक हाउ इट इम्पैक्ट्स द कम्युनिटीज, हाउ दे कम टुगेदर. व्हेन आई वाज टेलिंग द वुमेन कि आप घर जाके काम करिए, तो बोलते हैं नहीं, हमें साथ में बैठ के काम करना है. तो हम पंचायती नहीं करते, हम गलत बातें नहीं करते हैं, हम अच्छी प्रोडक्टिव बातें कर पाते हैं. तो एक मेंटल वेलबींग की भी एक चीज़ आती है इसके अंदर, जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो हमने जो ये खादी का प्रोग्राम स्टार्ट किया, इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, नॉट ओनली फ्रॉम ट्रेनिंग द वुमेन और पूरी कम्युनिटी को ट्रेन करना है, उसकी इंपॉर्टेंस समझाना, क्यों ये चीज़ करनी है और क्या इसका वैल्यू है, कौन खरीदेगा. आज भी पूछते हैं हमें कि कौन खरीदेगा. इससे यही है जो चीज़ लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं. एक बार जो ये चीज़ को यूज़ करने लगता है, फिर वो दूसरा चीज़ चेंज नहीं करता है. इसके अलावा हमारे पास में चैलेंजेस है रिसोर्सेज के, सोर्स करना, कैसे कहाँ से हमने इसको सोर्स किया है, क्योंकि अब बनना बंद हो गया है, तो इसकी रॉ मटेरियल मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है. तो उस चीज़ को वापस रिवाइव करना, किस तरह से हम रॉ मटेरियल्स को लेके आएँ. बहुत सारे सालों से हम इस चीज़ को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस चीज़ को. Concluding me, I would like to say that the communities that READ is working with इतनी remote areas में हैं, और हम बहुत सारा बात करें migration का. I think men, women, everybody needs to be included. Nobody should be left alone. Women को जब हम empower करते हैं तो पूरी society empower होती है, but men also need to be empowered to empower the women. Thank you so much. Thank you, Sonal ma'am. Men needs to be empowered to empower women. अगर हम दूसरे को खुद empower होंगे तो खुद दूसरे को empower करेंगे. This journey has been beautifully explained by Sonal, and she's beautifully, I think, wearing this. This is a sari hand crafted from one of our women stakeholder. हमने सोनल को सुना, मिस्टर राय को सुना, how we are bringing it to the ground level. अब हम अपनी कम्युनिटी, अपने जो पार्टनर्स हैं, जो रियल ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं, उनको इनवाइट करना चाहेंगे टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस इन दिस जर्नी. आई ऑल्सो लाइक टू इनवाइट मिस शैलजा फ्रॉम आंध्रा सेंटर. शी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ इंडिजिनस प्रोडक्ट्स विद herself. We are calling this year as a year of millet, and she is the flag bearer for millets from her community, where we are encouraging tribal resources, homegrown, tribal, and indigenous spices and food products. So welcome, ma'am. Please join us on the dais. So now I'd like to invite Seema ji and Aarti Rana to share their experiences. सबको मेरा नमस्ते. मैं लखीमपुर खीरी से सीमा सिंह, और मेरे साथ आरती राणा हैं. ये ट्राइबल सेंटर से हैं, और ये ट्राइबल्स की बहुत बड़ी एक लीडर भी रही हैं. और अभी आई एम सो हैप्पी टू अनाउंस कि अभी हमारे साथ एज वीविंग ट्रेनर हमारे साथ काम कर रही हैं. पहले मैं हमारे सेंटर पे, जैसे बाकी आपके सबके सेंटर्स पे भी होता है, हम भी लाइब्रेरी और लाइवलीहुड के सारे ही प्रोग्राम्स करते हैं. और मुझे बहुत खुशी है कि मैं रूट लेवल से जुड़ी हुई हूँ, और रूट लेवल की सब अच्छी बुरी चीज़ों को हम लोग बहुत आगे लेके जा रहे हैं. अच्छी चीज़ों को हम लोग और इन्हेंस कर रहे हैं, वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं, अपनी छोटी छोटी मुहिम को हम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी. हम अपने सेंटर पे हर वीक एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, कोई मूवी दिखाते हैं, कुछ भी करते हैं. एक हमारे सभी के गांव में एक प्रॉब्लम होती है कि ड्रिंक बहुत करते हैं. वहाँ पे एक लेडी मेरे पास आई, उन्होंने मुझे बोला आप एक जैसे मूवी चलाते हैं, तो मेरा हस्बैंड मुझे बहुत परेशान करता है, मैं उसके बारे में उस मूवी के टाइम पे अनाउंस कर दूँगी. वो इतना डर गया इस बात को लेके कि नहीं, अब मैं दोबारा फिर ये नहीं करूँगा. तो इस तरह की छोटी सी चीज़ से उसका पूरा घर सुधर गया. तो आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू रीड इंडिया कि इतनी छोटी सी चीज़ से एक लेडी का पूरा घर सुधर गया, और वो और लोगों के लिए भी एग्जाम्पल बनी कि ये भी हो जाएगा. डरते हैं लोग कि नहीं, हम ऐसा कुछ करेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम होगी. और अभी हम लोग बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट में, बिल्कुल डीप इन द फॉरेस्ट, हम लोग एक सेंटर हमने स्टार्ट किया है. वो आरती राणा उसको देखती हैं, और वहाँ की वीविंग ट्रेनर हैं. और उधर हम हैंडीक्राफ्ट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि ODOP का भी एक प्रोडक्ट जो है वो हम लोग वहाँ पे बना रहे हैं. ये हमारे ट्राइबल्स का एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, जिसको कि हम डिफरेंट डिज़ाइनिंग करके अच्छा उनको करा के और बेटर डिज़ाइनिंग दे के हम लोग उसको बहुत आगे बढ़ा रहे हैं.
उसमें आरती हम लोगों को बहुत सपोर्ट कर रही हैं। और हनी बी रियरिंग की ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे लेडीज़ ने अटेंड करी और हनी बी के प्रोडक्ट्स भी हम लोग बना रहे हैं वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा उधर इम्पैक्ट है क्योंकि बीच जंगल में है, लोगों को हनी बी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था और वहाँ बहुत अच्छा हम लोग काम करेंगे, इसके लिए भी हम लोग काफ़ी चीज़ें आगे ट्राई कर रहे हैं। मैं आरती राणा से कुछ कहूँगी कि वो अपने बारे में थोड़ा बताएं। थैंक यू सो मच। सभी लोगों को मेरा राम राम। मेरा नाम आरती राणा है। मैं ग्राम गुगरोला, पोस्ट चंदन चौकी, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से। डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी एकदम नेपाल से सटा, बॉर्डर सटा गांव है। जैसे वहाँ पे सटे गांव में जैसे हम लोगों का सन 2015 में मैं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 350 स्वयं सहायता समूह बनाई थी। तो 16 में तुरंत रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार मिला था और 18 में ODOP के अंतर्गत मेरा थारू क्राफ्ट को चयन किया गया था मैम। तो 21 में मुझे नारी शक्ति सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिला था। 22 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था मैम। जो हमारे जनपद लखीमपुर खीरी में सटे हुए नेपाल बॉर्डर जैसे हम लोग के गांव में मैम कई संस्था आया, जैसे कि ये हथकरघा उद्योग चलाने के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए। आज जैसे कि चलाने में तो चला दिए, फिर उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं था। फिर उसके बाद जैसे कि अभी तो हमें ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 6-7 महीना हुआ है। पहले मैं गीता मैडम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अपने थारू जनजात क्षेत्र की तरफ से, और जैसे कि रीड इंडिया हम तक पहुँची। आज जितना हम लोगों का पीछे काम था मैम, हम लोग 97 से मैं काम कर रही हूँ मैम, और जैसे काम करते 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 पीछे जैसे चलाने वाला कोई नहीं रहा, सब बताने वाला कोई नहीं। अभी हम 6-7 महीने से रीड इंडिया से हम लोग जुड़े हैं, तो फिर से हम लोग को वापस आने का मौका मिला है। और जैसे कि तेज़ी से महिलाएं जुड़ रही हैं, अच्छे से काम भी कर रही हैं, और जैसे कि हम लोग का मार्केटिंग का कोई दिक्कत नहीं है मैम। ट्राइब इंडिया एक भारत सरकार की संस्था है, उससे हमारा लिंक है और काफ़ी अच्छा उनका ऑर्डर है मैम। तो हम रीड इंडिया के सपोर्ट से, और रीड इंडिया का सपोर्ट रहेगा, हम लोग का मेहनत रहेगा, तो अच्छी सफलता मिल जाएगी मैम। और रीड इंडिया को फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अपने थारू जनजात क्षेत्र की तरफ से और अपने जनपद लखीमपुर खीरी के क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू सीमा जी एंड आरती जी। बहुत ही सरलता से आपने बताया कि किस तरीके से हम अपने मिशन को ग्राउंड पे लेके आए हैं। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगी श्रीमती अंशी देवजी भाई को। वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भुज से, और वो किस तरीके से इस ब्यूटीफुल कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं और एनहांस कर रहे हैं। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। धन्यवाद, नमस्ते। मैं गुजरात से आया हूँ, कच्छ भुज से। मेरा नाम देवजी भाई है। एक्चुअली मैं वीविंग का काम करता हूँ, और 1997 में मेरे को नेशनल अवार्ड मिला है, और 2016 में मेरे को संत कबीर अवार्ड मिला है। मेरे साथ मेरी वाइफ है, उनका नाम माया बहन है, और उनको भी 2006 में नेशनल अवार्ड मिला है। मेरे फादर को 2005 में शिल्प गुरु अवार्ड मिला है। मेरे सन को 2014 में नेशनल अवार्ड मिला है। हम 4 भाई हैं, चारों को नेशनल अवार्ड मिला है, और चारों को जो औरत है उन सबको नेशनल अवार्ड मिला है। तो ये नेशनल अवार्ड की गिनना करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, लेकिन जो अच्छा काम करता है उनका अच्छा पुरस्कार मिलता है। मैं जब सुबह आया तो मेरे को पता नहीं था ये स्टेज पर सब जो बैठे हैं वो स्टेज छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो स्टेज छोड़ के हमको स्टेज पर बिठाया है, वो रीड इंडिया का काम है। तो हमको जो स्टेज मिला है वो दूसरे के लिए भी हम खाली करें, और इतना अच्छा काम करें कि दूसरा लोग भी इधर बैठ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कच्छ में
बारिश का बहुत कम आना होता है या तो फिर ज़्यादा आ जाता है, तो ज़्यादातर नुकसान ही नुकसान रहता है खेती वालों को। तो इसी सिलसिले में बहुत सारी कलाएं हैं जो हमारे कच्छ में लोग करते हैं। उसमें वीविंग है, टाई डाई है, ब्लॉक प्रिंट है, एम्ब्रॉयडरी है, लेदर वर्क है। ये सब कलाएं हैं जिसकी वजह से सबको रोजी रोटी मिलती है और बहुत अच्छा कारीगर है। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं उस गांव में मैंने जो गिना, इतना हमको नेशनल अवार्ड मिला, इतना नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन 2000 की वस्ती है हमारे गांव का और 45 नेशनल अवार्ड है। तो कहने का मतलब है इतना अच्छा काम कर लेते हैं लोग कि उनको मार्केट ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता है, मार्केट खुद इनके घर तक आती है। तो जो जैसे हमारे गांव की बात किया वो तो विविंग का है, लेकिन और गांव में भी बहुत सारे नेशनल अवार्ड है और वो भी एम्ब्रॉयडरी में है, लेदर वर्क में है, ब्लॉक प्रिंट में है, टाई डाई में है। लेकिन जो हमारा जो कच्छ का जो मेन सेंटर है वो भुज है। तो भुज के सिटी के अगल बगल में जो लोग रहते हैं उनको सबको अच्छा काम मिल जाता है, अच्छी इनकम हो जाती है। लेकिन भुज के बाहर जो रहते हैं, जो सिटी के बाहर रहते हैं, जो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर जो रहते हैं, उनको काम मिलना मुश्किल होता है। या तो फिर हमारे जैसे जो ट्रेडर रहता है वो उनसे काम करवाता है और कम पैसों में उनसे काम लेता है और ज़्यादा पैसा खुद कमाता है। तो जब रेन इंडिया से मैं जुड़ा तो मेरे को पता नहीं था कि रीड इंडिया का इतना बड़ा काम होगा। पहले मेरे को फ़ोन आया कि आपको मिलने के लिए हम आते हैं। मैंने बोला इतना नेशनल अवार्ड मिला है, हर कोई मिलने के लिए आता रहता है। तो मैंने बोला आप भी आ जाओ। तो बोला नहीं, आपको यहाँ 2-3 दिन रहना है। तब मैंने पूछा कि 2-3 दिन रहना है तो क्या सब्जेक्ट क्या है? तो उसने बोला सब्जेक्ट कुछ नहीं, आपको मिलना है। तो मैंने बोला आ जाओ। तो सब मेरा काम दिखाया। मैं एक हॉस्टल चलाता हूँ स्टूडेंट के लिए, जिसमें जो मैं बात कर रहा हूँ 50-100 किलोमीटर के अंतर में जो गांव है उसी के बच्चे लोग यहाँ रहते हैं पढ़ने के लिए। तो वो मैं गीता मैडम को बताया और बोला कि यहाँ सब लड़के लोग पढ़ने के लिए आते हैं। तो उसने बोला यहाँ लाइब्रेरी खोलना है हमको। तो मैंने तुरंत तो कमरा दिखाया कि इधर खोलो, तो अच्छी बात है। लेकिन इतना बड़ा काम होगा वो भी तभी भी मेरे को पता नहीं था। फिर मेरे को बोला कि ऐसा कोई ट्रेनिंग हमको चालू करना है, जो कारीगर लोग हैं उनको, जिसको स्किल है जिसमें, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो मैंने सोचा कि यहाँ तो कारीगर लोग, जो गांव में जो कारीगर लोग रहते हैं ना, वो उसके घर में ही कारीगरी रहती है, उनको सब पता रहता है कैसे एम्ब्रॉयडरी करना है, कैसे वीविंग करना है। क्योंकि हमारा जब बच्चा पैदा होता है तो हमारा वीविंग का कपड़ा रहता है, उसमें ही लपेटा जाता है। तो उनको पहले से पता है ये वीविंग का कैसे बनता है। तो फिर मेरे को आइडिया आया कि ये जो गांव में जो लोग रहते हैं उनको मार्केट तक कैसे ले जाना। काम तो सबको आता है, लेकिन वो अपने अपने कपड़े के हिसाब से सब काम करते हैं। तो मैंने उनको सबको बताया कि ऐसा है, मार्केट में क्या चलता है, कौन सा कलर चलेगा, कौन सा डिजाइन चलेगा, क्या करने से हमको मार्केट में एंट्री मिलेगी, वो हमको करना चाहिए। तो इसी सिलसिले में बहुत गांव में मैडम को भी ले गया था एक बार। बहुत गांव में ऐसी औरतें हैं जो जिसको काम की ज़रूरत थी, तो उसी औरतों को मैंने समझाया। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन औरतों का जो मर्द लोग थे
वो उनको वो बताया था कि किसी को आधार कार्ड नहीं देने का, वो सब अपने नाम से लोन ले लेगा। तो उनको सबको बताया कि आधार कार्ड दो तो मैं उधर आपका रजिस्ट्रेशन कराऊं। तो बोले नहीं, आधार कार्ड तो नहीं देंगे हम, क्योंकि वो तो आप लोन ले लेंगे या और कुछ कर लेंगे तो भी हम क्या करेंगे। तो बोले आप पहले ऐसा करो, क्लास चालू करो, आधार कार्ड बाद में देना। तो क्लास चालू किया, फिर 15 दिन 1 महीना बाद बोला कि अब तो भरोसा है आपको, ये आपका क्लास चालू हो गया है, आपको काम मिल रहा है, आपको धागा ये सब मटेरियल्स है वो मिल रहा है, तो ठीक है अब तो ले जाओ बोले। तो तब मेरे को ये मिला। तो बहुत लोगों को फायदा हुआ है। और एक गांव ऐसा है जिस गांव में झाड़िया लोग रहते हैं, वो तो बहुत पीने में 24 घंटा पीता है वो। तो और तो लोग हैं वो उनके पास पैसा नहीं रहता है घर चलाने के लिए भी। तो उस गांव में मैं गया, किसी ने बताया कि उस गांव में काम की बहुत ज़रूरत है और उधर आप जाओ। तो मैं उस गांव में गया, तो उधर सब औरत लोगों को पहले से बताया था कि इतने बजे मैं आऊँगा, आप सब इकट्ठे हो जाना। तो वो सब इकट्ठे हो गए थे। मैं गया और मेरे साथ एक लेडीज़ भी थी, क्योंकि लेडीज़ों के बीच जाना है तो कोई चाहिए साथ में। तो लेडीज़ भी थी। तो सबको बिठा के ये बात कर रहा था कि हमको काम मिले तो कैसे मिले, हम क्या करेंगे तो हमको काम मिलेगा। ये बात चल रही थी। तो वो जो इस घर का मालिक था वो पी कर आया। उसने बोला कि क्यों ये औरतों के बीच आप बैठे हो, कहाँ से आए हो, क्या काम करते हो, पैसा सब हमारा आप खा जाते हो। फिर मेरे हाथ में बैनर था रीड इंडिया का, तो वो खोल के दिखाया कि देखो ये एक NGO है, उनसे हमको काम मिलेगा, ये गाइड मिलेगी। तो उसने खोल के देखा तो बैनर तो इंग्लिश में था, वो पढ़ नहीं पाया। तो बोले ओ ये तो बाहर की कंपनी लगती है कोई। मैंने बोला हाँ बाहर की कंपनी है। फिर उसने वहाँ से भगाया, बोले मैं 2 को मारूंगा आपको, आप चले जाओ यहाँ से। तो ऐसे गांव में हम कैसे काम कर पाएंगे, ये भी सोचने की है। क्योंकि उस गांव के जो सब उनका घर ये सब देखा ना, तो ऐसा लगता है कि उनको खाना मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन जो रीड इंडिया का जो प्रयास है वो बहुत ही बढ़िया है। और साहब ने बताया हर घर दस्तक, हर हाथ पुस्तक। तो सेम थॉट्स मेरे को आया था कि लाइब्रेरी तक कोई पढ़ने के लिए नहीं जाता, क्योंकि किसी को फुर्सत नहीं है, जाएगा ही नहीं, क्यों जाएगा। तो मैंने सोचा था कि जैसे सब्जी बेचने वाला जो जाता है सब्जी बेचने के लिए, ऐसे हफ्ते में एक बार गाड़ी निकालना, गांव में घुमाना, उसमें बच्चों लोगों को जो कहानियाँ जो पसंद है ऐसी पुस्तकें ही रखना, और घर घर सबको कहना कि जिसको पढ़ना है वो ले जाओ। और वो दूसरे हफ्ते जब जाएगा तो पढ़ ले रहा होता, उनके मम्मी को भी सुनाएगा, पापा को भी सुनाएगा, लड़का लोग, तब उनको पता चलेगा कि नहीं पढ़ने में तो ये बहुत ज्ञान मिलता है, सारा कुछ जानने को मिलता है। तो दूसरे हफ्ते जाएगा तो वो पुस्तक जमा कराएगा, दूसरा पुस्तक ले जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग हैं, मेरे ख्याल से कि हमको जो आदमी है उनको आदमी बनाने का है। जो आदमी बनेगा तो जो मैडम ने कहा जो पोल्यूशन का जो हमारा काम है वो कुछ कंट्रोल में आएगा, क्योंकि बात समझ में नहीं आती ना क्या करना चाहिए। तो जिसको जितना काम हम करेंगे उतना काम कैसे फायदे में हम जाएंगे वो हमको थोड़ा सोचना चाहिए। तो मेरे को बहुत बोलना तो नहीं आता है, लेकिन जो कारीगर लोग हैं मैंने उनको ये ट्रेनिंग दी है। अभी 800 से 1000 मैडम को ट्रेनिंग दी है, उसमें से 200-250 लेडीज़ लोग ऐसा है जिसको काम मिलता रहता है रेगुलर, और सबको काम मिलता रहेगा। और दूसरा मेरा ऐसा है कि जो जिसको ट्रेनिंग मिल जाती है उनको मार्केट में जाके उस दुकानदार से मिलवा देता हूँ कि ये कारीगर है,
इनको जितना काम चाहिए उतना आपको देगा, तो ये भी बेनिफिट है उनको, क्योंकि दूसरी मार्केट ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सब ने मेरे को सुना, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू देवजी भाई जी, आप जैसे पार्टनर्स की वजह से ही हमारा मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो पा रहा है। थैंक यू फॉर बीइंग आवर पार्टनर एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी कि हम आपकी और हमारे मिशन में कामयाब हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब मैं बुलाना चाहूँगी शैलजा जी को। शैलजा जी आंध्रा से आए हैं हमारे साथ और करीबन पिछले 10 साल से जुड़ के हमारे साथ काम कर रहे हैं। सो शी विल शेयर हर एक्सपीरियंसेस विद ऑल ऑफ अस। I'm Shailaja from Andhra Pradesh. I'm a coordinator, and a small gist I would like to tell about my center. My center is on the fence of a forest called Kaundinya, which runs across Chittor district. So, as we all, many of my friends were talking about their health. So, as we all know, it's a need of the hour where we have to awaken ourselves and go into a better life. For a better life, we need a better food. So I would like to take you all across millets, which is being spoken widely these days. So I'll just introduce you all to the millets and their benefits. I have a small PPT done. I will just talk to you all. Millets are these small seeds which are grown with a very less water. So my place is a place where we do not have water. We depend on rain-fed crops. So this is one of the things, these millets, these are the different types of millets. We have foxtail millet, ragi, which is a staple food of South India. This is little millet, we call it samulu in our language. So these are grown in parts of Asia. These are very rich in food, and they are very rich in protein, fiber and minerals. They are used in traditional foods of South India like pongal, idli and dosas. Then pearl millet. Pearl millet is also known as bajra. I think most of the North Indians also use bajra, which is rich in protein again and essential minerals like iron and magnesium. It is gluten-free, making suitable for individuals with gluten intolerance. This helps in reducing risk of cardiovascular diseases and diabetes due to high fiber content. Then this also provides sustained energy due to the slow digestion of carbohydrates. This is our staple food in South India, especially in Karnataka and parts of Andhra Pradesh where I live. This is exceptionally rich in calcium, making it beneficial for bone health. Today, most of the people are struggling with vitamin D deficiency, calcium D deficiency. So particularly vegetarians who may have limited source of calcium, we can get in this. This can be consumed in many various ways. We can make, which is called as ragi ball, or you can make a bread out of it, or you can even have a porridge out of it. So this also helps in weight management as it digests very slowly. It helps in controlling blood sugar, making it suitable for individuals with diabetes. This also contains amino acids, making complete protein source. Then foxtail millet. This is again very good for diabetes, low glycemic index, making it suitable for individuals with diabetes and controlling sugar levels. It is also rich in antioxidants, which helps in reducing oxidative stress and inflammation in the body. This contains good amount of iron and calcium, supporting overall health and preventing anemia and bone-related issues. Most of the millets are very rich in fiber and aiding to digestion. Barnyard millet. This is also widely cultivated in India. This is also rich in fiber, minerals and particularly zinc and iron. This also can be used in porridge, upma and idlis. So as I already said, these are the benefits, nutritional benefits which millets have.
They are gluten-free, low glycemic index and nutritional benefits. Another thing is this does not need any pesticides to grow. So it is chemical free and cultivated with a very less water, unlike wheat or rice. And I'm a farmer too, so I do know all this. And as many people have said, even I'm an award winner of Andhra Pradesh as a best women farmer of 2018. Thank you so much, Devji Bhai, Aarti, Seema, and Ahmed, Sonal, Shailja, and Inder and Jessica. It was a wonderful session. I just want to make one statement here. We call about sustainability, we think and we act, but sustainability cannot be achieved if stomach is not full. That was the READ's agenda. Going to the people who really need us the most and make them earn money to serve their family, to get good food, and then provide good education to their children. That we were able to achieve when we were addressing the sustainability goals. The second point I just wanted to make here is empowerment. Empowerment, just creating opportunity at their doorsteps. Again, helping them to save money. They don't have to send their children out, have dual houses, spend more money for their residing outside the village. So we created the opportunity in their villages. The third point which I would like to emphasize, enable women to realize the importance of education when they are visiting the library and engaging themselves with our livelihood component so that they can save money for the higher education and the continuous education of their children. That is the third thing we achieved during this process. Fourth was delayed age at marriage. Girls are very smart in rural areas. they बोलती हैं अभी तो मैं अगर 5,000 कमा रही हूँ तो मुझे उसी लड़के से शादी करनी है जो 10,000 कमा रहा है। तो ये बहुत बड़ा साइलेंट इम्पैक्ट है जो हम नहीं रियलाइज करते, और ये मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ, जिस विलेज में जाती हूँ, ये मुझे अचीव होता है। और द लास्ट पॉइंट हियर इज कि इवन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, बिकॉज शी इज एंगेज्ड नाउ, शी वांट्स टू मैनेज हर टाइम and she is the decision maker for giving birth to the children and rearing them. These are the goals which are attached not only with education and livelihood, but directly, indirectly, we are creating the impact for the holistic development of the community. I would also take this opportunity to share one thing here. When I went to Devji Bhai's house in Bhuj, I met his father. मैं इनके पिताजी को मिली वहाँ पे, जो बहुत बुजुर्ग हैं, 90+ years के हैं, और मुझे उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी, मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने ये स्टोरी सुनाई कि हमें जब गांव में कीर्तन होता है, जहाँ पे सत्संग होता है, वहाँ पे हमें जाने नहीं दिया जाया था। और मैं क्या करता था, एक पिलर से चढ़ के ऊपर बैठ के सब कुछ सुनता था, क्योंकि लाउड स्पीकर लगा होता था, और उस लाउड स्पीकर से सुन के जो मैं वैल्यूज लाता था वो मैं अपनी कम्युनिटी में सुनाता था। एंड दैट इज व्हाट रीड इज डूइंग, बिकॉज रीड इज अ वेरी डीप कल्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड वी प्रोवाइड वैल्यूज to the community after practicing that in an organization. That is the impact we are creating, which doesn't come on the paper. So I really wanted to share this. You meet people here, you tell any girl, any participant to stand. She is full of culture, knowledge and practice values at home. When we say we are empowering women, we are not standing against their families. We first thing we tell, be supportive of your family. If you are earning, contribute to the development of your family and be supportive
with your husband, with mother-in-law and the whole family, whether they are directly related or indirectly related, and they are the stalwarts in the community. They are respected. The stories are that earlier they were at home, now they walk in the village and people say, ये रीड की मेंबर है, ये रीड की टीचर है, ये रीड की ट्रेनर है, और लोग रास्ता खाली कर देते हैं और उनको हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि आप यहाँ से निकलिए. These are the stories which are real, and when I hear, I really feel that I should be thankful to the person who started Read and given me the opportunity to experience all these things. भुज की जो इन्होंने बात करी कि वहाँ पे मैं औरतों को खुद मिलने गई थी, आधार कार्ड नहीं दिए थे उन्होंने बोला मैम आप आइए, पर हमारे इस क्षेत्र के बाहर जो बाउंड्री है इसके अंदर लॉर्ड शिवा का इतना इम्पैक्ट है, अगर आप कुछ हमारे साथ करेंगे तो लॉर्ड शिवा आपके साथ गलत करेगा, तो इस बात को समझने के बाद हमारे साथ काम करिएगा. तो दैट इज द वैल्यू आई गेट व्हेन आई गो टू द कम्युनिटी. थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am, for sharing such experiences that we've, experienced on ground. So we have Inder and Jessica have been patiently, listening to all our experiences and stories. So we would, request you also to share about, how you feel about this whole journey. And you are a volunteer with the volunteering exchange program with Accenture. So we would like to hear from you. Thank you. I have some prop today. Can you see this? आप लोग ये देख सकते हैं? क्या है ये? या अगर मैं आपको बोलूं कि इस पैरेट ने मुझे IIT IIM क्लियर करने में मदद किया है, तो आप क्या बोलेंगे? शायद कुछ लोग मुझे पागल बोलेंगे, या मे बी मैं अपने सेंसेस में नहीं हूं. बट दिस स्टोरी इज नॉट अबाउट दिस पैरेट बट द वीमेन एम्पावरमेंट. हाउ आई टेल यू. तो कुछ समय पहले की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है. आई थिंक 10-12 साल पहले की बात होगी. मेरे पापा एक नॉर्मल लेबर क्लास है, उनकी मंथली इनकम 2-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं होगी. एंड 5 बहन भाइयों को पालना दिल्ली जैसे जगह पे काफ़ी डिफ़िकल्ट था. उस केस में मेरी मदर यूज्ड टू मेक्स दीज टॉयज, और इनसे क्या होता था कि एडिशनल 1000 रुपये या 1500 रुपये इनकम जनरेट होता था, जिसके थ्रू आई कैन गेट गुड ट्यूशंस. ठीक है, इवेंचुअली मेरा सुपर 30 में हुआ. सुपर 30 पटना का स्टूडेंट हूँ मैं. IIT IIM सब क्लियर हुआ. बट जो स्टार्ट हुआ जो जर्नी, वो एक एम्पावरमेंट जर्नी से था. ठीक है, और उसको मैं वीमेन एम्पावरमेंट बोलता हूँ. मतलब आपने मैंने मल्टीपल टाइम वीमेन एम्पावरमेंट वर्ड सुना, बट मैं उसको वीमेन एम्पावरमेंट नहीं बोलता हूँ. मैं उसको नेशन बिल्डिंग या हिंदी में राष्ट्र निर्माण बोलेंगे. ठीक है, तो ये मेरा स्टोरी है. और हम एक्सेंचर में, बिकॉज एक्सेंचर इज वेरी मच रिलेटेड टू दिस, एंड हम एक्सेंचर में हर तरीके से कोशिश करते हैं कि जो राष्ट्र निर्माण है स्पेशली वीमेन के द्वारा जो बनाया गया है, उसको हर तरीके से सहयोग करें. तो हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, हम उसमें 4-5 चीज़ें कर रहे हैं. जैसे मैं अभी बख्शी सर से स्टार्टिंग में बात कर रहा था, तो वो एक सप्लाई चेन होता है उसका पूरा. तो पहला सप्लाई चेन स्टार्ट होता है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करेंगे. तो हमारा प्रोग्राम्स है बहुत सारा जिसमें हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं. उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है मेंटरशिप. तो एक्सेंचर इज प्रेटी मच इन्वॉल्व इन द मेंटरशिप प्रोसेस. तो उसमें हम काफ़ी NGOs में जाके रीड इंडिया के साथ जो वीमेन ग्राउंड पे काम कर रही है उनसे बात करना, उनकी प्रॉब्लम समझना और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो सोल्यूशनिंग पे काम करते हैं. इसके अलावा हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं, इनफैक्ट जेसिका इज लीडिंग, मतलब जेसिका एक प्रोग्राम रन करती है एक्सेंचर के अंदर, जिसमें हम वेरियस टॉपिक्स पे, जैसे नेगोशिएशन कैसे करना है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है उसका करेक्ट प्राइस क्या होना चाहिए, या फिर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये सारा ज्ञान हम अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं.
इसके अलावा हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक वीएक पोर्टल पे हमारा काफ़ी बड़ा पार्टनरशिप है, तो आर टेक टीम इज इन्वॉल्व इन दैट। तो उसमें क्या होता है कि वीमेन स्मॉल बिजनेसेस, वीमेन हु आर रनिंग स्मॉल बिजनेसेस, they can register themselves on VEC and वहाँ पर वो एक वन स्टेप सोल्यूशन है। तो जो मेलास कंडक्ट होते हैं जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, वेरियस टीचिंग इनिशिएटिव या गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम्स है, वहाँ पे एक जगह पे उनको सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो इस तरीके से एक्सेंचर 4-5 चीज़ों में इसको प्रमोट कर रहा है। और एज आई राइट इन द स्टार्टिंग आई सेड कि मैं इसको वीमेन एम्पावरमेंट नहीं मानता हूँ, मैं इसको देश का निर्माण मानता हूँ, और आई एम प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव। इसके अलावा हमारी आई थिंक बहुत सारी बातें हुई सस्टेनेबिलिटी पे। तो सस्टेनेबिलिटी आई थिंक अमित जी ने गांधी जी का कोट नहीं, आई थिंक या सोनल मैम ने गांधी जी का एक कोट बोला था। मैं दूसरा कोट बोलूँगा कि आपकी नीड के लिए इस धरती पे इनफ है, बट आपकी ग्रीड के लिए इनफ नहीं है। तो इन द सेम वे मेरे को भी ये लगता है कि जो आज की जनरेशन है उनको अपनी दे शुड वर्क एट देयर 100% एफिशिएंसी, मतलब पूरा 100% एफर्ट मार के काम करना चाहिए। बट जब आता है कि आप उसमें से क्या लोगे, तो उतना ही लेना चाहिए जितना आपको नीड है, ठीक है। और जस्ट कुछ बातें बताना चाहूँगा। हम एक्सेंचर में हम क्या करते हैं कि जैसे पानी का कच में आपने बताया पानी की कमी है, तो हम अपना 100% वाटर जो हमारे टॉयलेट्स और ऑफिसेस के टॉयलेट्स वगैरह में यूज़ होता है, हम उसको 100% रीयूटिलाइज करते हैं क्लीन करने के बाद। इसके अलावा हमारा 99% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो जनरेट होता है, वी यूटिलाइज दैट, हम उसको रीयूज़ कर लेते हैं। पेरिस एग्रीमेंट में जो हमारा एक कमिटमेंट था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस हमको इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, तो वी आर कमिटेड टू दैट। जो उसमें हमारा प्रॉमिस था उसमें हमने 2016 बेस लाइन है जो हमारा, उससे 70% कार्बन रिडक्शन किया है। 99% ऑफ आवर ऑफिसेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग इज रन बाय रिन्यूएबल एनर्जी, जो ऊर्जा के परंपरागत सोर्सेज, मैं सॉरी अगर मुझको शायद भूल गया हूँ मैं, तो परंपरागत सोर्सेज बोलते हैं शायद, वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो नए वाले सोर्सेज आ रहे हैं हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा नहीं था कि सुमिता मैम ने बोला कि वी आर ईगरली वेटिंग, हम काफ़ी ऐसा नहीं, हम वेट कर रहे हैं। बिकॉज मेरे को तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा। जब मैं आया शायद मैं थोड़ा लेट हो गया था, गीता मैम बोल चुकी थी, देन सिंधु सर ने बोला, शर्मा जी ने बोला, शर्मा सर ने बोला, पक्षी सर बोल रहे थे उस समय, एंड उन्होंने इतनी सारी बातें बताई है ना कि मेरे लिए वो सारी बातें मैं लेके जाऊंगा। और मैं तो ये सोच रहा हूँ, पहले मैं कई बार होता है कि हाँ यार मैंने ये IIT का एग्जाम क्लियर किया है, इसका एग्जाम किया है, वो ईगो आ जाता है। बट मैं जब इस स्टेज पे आया और मैं लोगों को सुन रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा नॉलेज कुछ भी नहीं है इनके आगे। एंड इतना अच्छा बातें बोला है ना इन्होंने, तो मैं लेके जाऊंगा और आई विल शेयर इट विथ माई मदर, ठीक है। शी इज़ वन ऑफ द बेनिफिशरीज ऑफ रीड इंडिया एक्चुअली। तो उनको बताऊंगा, शी वुड बी रियली प्राउड। एंड या आई डोंट हैव वर्ड्स एक्चुअली, तो थैंक यू सो मच। एंड एक लास्ट में यही बोलूँगा कि भगवान ने आपको एबिलिटीज दी हैं। बहुत बार होता है आपको सेल्फ डाउट होगा, बट आप सेल्फ डाउट मत करिए, कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है। देयर वुड बी सिचुएशन जब पूरा संसार आपके पीछे पड़ा होगा, बट वहाँ पे आपको हार नहीं माननी है और एक स्टेप आगे लेके उसको सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी जो ताकत है, ये तोते वाली ताकत मेरे में आई ना, तो आपको भी वो ताकतें आके वो सॉल्व करवा देगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच जेसिका, ओवर टू यू। तो आने से पहले मैंने काफ़ी पॉइंटर्स बनाए थे कि ये बोलना है वो बोलना है, फिर मैंने सबकी कहानी सुनी
और सच में जैसे इंदर कह रहा है कि बिल्कुल स्पीचलेस है। सर आपने बोला था कि आपको बोलना नहीं आता, आपने मेरे को बिल्कुल खामोश कर दिया आपकी कहानियों से। मतलब मैं बस कहना चाहूँगी कि इतना इंस्पिरेशन इस रूम में है। सबने, पक्षी सर, शर्मा सर, कल्पना मैम, गीता मैम, आप सबने इतनी अच्छी बातें बोली। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जैसे कल्पना मैम सोसाइटी की बात कर रही थी कि सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ जो औरतें होती है उनको उनका हक देने में। तो मेरी भी कुछ ऐसी कहानी है कि मेरी मम्मी एक सिंगल मदर है और वो एक टीचर है, और जैसे ही वो उम्र आई तो मेरे भी पढ़ने पे बहुत वो लगाया गया कि इसको पढ़ना नहीं चाहिए, इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक लड़की है और ये लड़की है, इसकी तो शादी हो जाएगी, ये चली जाएगी, तो आप इसे क्यों पढ़ा लिखा के बड़ा कर रहे हो। लेकिन वहाँ मेरी मम्मी ने मुझे हिम्मत दी और आज मैं यहाँ हूँ उनकी बदौलत। तो ये दिखाता है कि जैसे बख्शी सर ने कहा कि जो औरत होती है वो एक कम्युनिटी को बढ़ाती है। एम्पावर्ड विमेन एम्पावर विमेन। सो बस मैं यही कहना चाहूँगी और शुक्रिया आप सबने बुलाया रीड इंडिया। आप जो काम कर रहे हो वो बहुत बहुत इंस्पिरेशनल है और हम लोग प्राउड है आपके साथ एसोसिएट होते हुए। और मैं तहे दिल से शुक्रिया आप सबको कहना चाहूँगी आप सबके काम पे। और बस एक लास्ट लाइन में कहना चाहूँगी जो बहुत क्लोज है मेरे से, कि जो औरतें होती है, एक औरत के अकम्पलिशमेंट के लिए कोई लिमिट नहीं होती है। आप जितना आगे जाना चाहो आप उतना आगे जा सकते हो, और जिस दिन आप आगे जाओगे आप पूरी सोसाइटी को साथ में आगे लेके चलोगे। I made it yesterday because I learned this. I don't know. टाटा पावर का आई थिंक वहाँ पे सेंटर है, तो माई मदर यूज टू गो, इट इज़ इन एसोसिएशन विथ रीड इंडिया। तो मेरी मदर ने सिखा था एंड आई वॉज वेरी यंग जब मैंने ये बनाना सीख लिया था, तो मेरे को सिलाई कढ़ाई सब कुछ आता है। तो अगर मैं कुछ और नहीं करता तो मैं कुछ कर लेता। थैंक यू सो मच, थैंक यू रीड इंडिया। Thank you so much to Inder and Jessica for opening your heart out and sharing your, inspiring stories with us. I think we are so privileged and proud to have you join us today, and Accenture, our core partner on this mission. इसी कड़ी में और कड़ी जोड़ते हुए हम एक बुक लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें कि स्टोरीज़ हैं ऐसी ही महिलाओं की और ऐसी ही प्रेरणा भरी स्टोरीज़ हैं। हो सकता है जो एम्पावर्ड हो चुकी हैं उनकी कहानी पढ़ के और लोग एम्पावर्ड हों।